method of CPC related to the incidental proceeding, and that is to issue commission. What is the incidental proceeding to be initiated before the court? For issuance of commission. Section 75 to 78, which section cover under this part? Section 75 to 78 of the CPC. First of all, section 75, power of court to issue commission. For what purpose court may issue the commission under section 75 of CPC? There are 7 purposes specified and mentioned in section 75. For such purpose, the court may issue the commission in its discretion, subject to the such condition and limitation as may be prescribed. Court may issue a commission to examine any person, to make a local investigation, to examine or adjust the accounts, to make a partition, to hold a scientific, technical or expert investigation, to conduct the sale of property which is subject to the speedy and natural decay and which is in the custody of the court pending the determination of suit, and last one, to perform the any ministerial act. For these 7 purpose or any one of the purpose, court may issue the commission under section 75. What is the commission? Commission is the one of the written order of the court to do a certain act, examine the any witness, to make a local investigation, to make a partition of immovable property. That order of court is called a commission. For what purpose? So, the 7 purposes mentioned in section 75. First, to examine any person. Second, to make a local investigation. Third, to examine or adjust the accounts. Fourth, to make a partition. Fifth, to make a scientific, technical or expert investigation. Sixth, to conduct the immediate sale of the perishable property that is subject to the speedy and natural decay and which is in the custody of the court during the pendency of suit, and last one, to perform the ministerial act. These points which involved in section 75 are also concerned to the order 26. The to examine any person, commission for to examine the any person, rule 128 of order 26 is concerned to the first point, and rule 9 and 10 are concerned to make a local investigation, and 11 and 12 are concerned to the examine or adjust the account, and 13 and 14 are concerned to make a partition. Rule 10A, order 26 rule 10A is concerned to the holding the scientific, technical or expert investigation. 10C is concerned to conduct the sale of perishable property which is in the custody of the court, and rule 10B is concerned to perform the ministerial acts, and rule 15 to 18 of order 26 are general provision as to the commission, and last rule 19 to 22 are concerned to the commission on the instance of foreign courts or tribunals. आनुषंगिक कार्रवाइयाँ, ये सीपीसी का भाग 3 है. क्या है ये? भाग 3. भाग 3 जो है ये आनुषंगिक कार्रवाइयाँ हैं, और आनुषंगिक कार्रवाइयों का मतलब क्या है? कमीशन जारी करने से, कमीशन निकालने से कौन से प्रावधान कवर होते हैं इस भाग 3 के अंदर? धारा 75 से लेकर और 78 तक है वो कवर होते हैं, और इसके साथ ऑर्डर 26 भी इंपॉर्टेंट है, वो भी कमीशन से रिलेटेड है. कमीशन क्या है? ये पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये कोर्ट का ऑर्डर है. क्या है ये? न्यायालय द्वारा ऐसे साक्षी जिसको न्यायालय में उपसंजात होने से छूट प्राप्त है, या बीमारी या अंग शिथिली के कारण न्यायालय में उपसंजात होने में असमर्थ है, या लोक सेवा का सदस्य है और जिनकी अनुपस्थिति से लोक सेवा को कोई नुकसान हो सकता है, इनकी परीक्षा करने, स्थानीय अन्वेषण आदि करने के लिए किसी न्यायालय के नाम, किसी समुचित प्लीडर के नाम, समुचित व्यक्ति के नाम कोर्ट एक ऑर्डर करता है, और वो आदेश ही क्या है? कमीशन कहलाता है. कुछ कार्य करने के लिए जो है कोर्ट एक ऑर्डर करता है, वो ऑर्डर किसी और कोर्ट के नाम भी हो सकता है, किसी अधिवक्ता के नाम भी हो सकता है, किसी समुचित व्यक्ति के नाम भी हो सकता है, और किन व्यक्तियों की परीक्षा आदि करने के लिए जो बीमार है, आ नहीं सकते, या जिनको व्यक्तिगत हाजिरी से छूट दे रखी है, प्रदानशील महिला या संवैधानिक पदों को धारण करने वाले व्यक्ति वगैरह, या जो पब्लिक सर्विस के मेंबर है और उनकी वो कोर्ट में हाजिर होने से पब्लिक सेवा का नुकसान है वो हो सकता है. तो ऐसी कंडीशन में वो जहां है वहीं जाके एक जो है वो वहां का कोर्ट या वो एडवोकेट है वो जाके उनकी वो एविडेंस है वो ले सकता है.
तो इस पर्पज के लिए जो है वो कोर्ट एक ऑर्डर करता है, और वो कोर्ट का ऑर्डर है वो क्या कहलाता है, वो है वो कमीशन है वो कहलाता है। कमीशन का मतलब वो बट्टा वगैरह नहीं है जो आपने मैथमेटिक वगैरह में पढ़ रखा है। कमीशन खोर या कमीशन बाजी जिसको हम कहते हैं, कुछ काम के बदले 5% 10% हमें मिल जाए। बहुत जो है वो गंदा अनुभव अभी मुझे मकराना में वो देखने को मिला। 2-4 दिन पहले मैं मार्बल लेने के लिए गए, तो आप गाड़ी से उतरो नहीं उससे पहले तो मतलब लोग दलाल वहाँ सक्रिय है, उसको ग्राहक को उठा लेते हैं वो, और फिर जहाँ जहाँ हम देखने के लिए गए घूमे वहाँ पर संडे वाले दिन, तो मतलब मेरे साथ मेरे जीजा जी थे, वो पत्थर के काम के जानकार वगैरह, उनको भी इवन उन्होंने इशारा कर दिया कि पर फिट आपके भी 10 रुपये अलग रखे हुए हैं। वो जो दलाल है उनके तो है ही, हर व्यक्ति को मतलब पैसे के बल पर है वो घेरने में लगे हुए। केवल मेरे से उन्होंने नहीं कहा, उसको छोड़कर जितने भी लोग मेरे आसपास थे उन सबको उन्होंने अपनी तरफ से ऑफर दे दिया। तो वो वाला कमीशन नहीं है जो मकराना में मुझे देखने को मिला है। कमीशन का यहाँ मतलब एक कोर्ट का ऑर्डर है और कुछ कार्य करने का है। बेसिकली इसमें जो मुख्य कार्य वो क्या है, किसी साक्षी का साक्ष्य लिखबद्ध करना, एविडेंस लिखने के लिए जो है उसका वो कोर्ट में नहीं आ पा रहा है, तो वो जहां है वहां जाके उसकी एविडेंस रिकॉर्ड कर दी जाए, इसके लिए कोर्ट एक ऑर्डर करता है। वो ऑर्डर क्या कहलाता है, वो कमीशन है वो कहलाता है। हाँ जी, ये कमीशन अमीन के द्वारा कराया जाता है ना? कौन सा, ये वाला? नहीं नहीं नहीं, ये किसी कोर्ट के नाम भी ऑर्डर हो सकता है कमीशन का, और परीक्षा करने के लिए जनरली एडवोकेट के नाम होता है ऑर्डर। यदि कोर्ट के वो क्षेत्राधिकार की सीमाओं के भीतर ही है तो किसी एडवोकेट के नाम जो है वो हो जाता है। ये सो एंड सो जो है वो जिनको कमिश्नर के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत है वो किया गया है। सिविल मैटर्स के अंदर आप ऑर्डर 18 रूल 4 वगैरह में देखेंगे तो एविडेंस कमिश्नर के माध्यम से भी लिखबद्ध हो सकते हैं। वो कमिश्नर कौन होंगे, अधिवक्ता, सिविल मामलों में अनुभव रखने वाले अधिवक्ता, सिविल मैटर्स में जिनकी 10 से 15 साल की प्रैक्टिस है और वो रोज एविडेंस वगैरह करवाते हैं, पारंगत है, मुख्य परीक्षा में क्या क्या है वो लिखवाना है वो, और जिरे वगैरह में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका कैसे लिखना होता है वो लिखने में भी पारंगत है, और वो क्या पूछा जाना चाहिए क्या नहीं पूछा जाना चाहिए वो सब उनको आता है। ऐसे अधिवक्ता को कमिश्नर के रूप में जो है वो नियुक्त है वो किया जाता है। सर जैसे संभल में और बनारस में कमीशन नियुक्त हुआ है, वो एक कमीशन आयोग भी होता है। क्या होता है एक कमीशन का मतलब आयोग भी होता है, जिसमें वो सिंगल मेंबर का भी हो सकता है और 2 और मोर मेंबर्स भी है वो हो सकता है। जैसे अपना फाइनेंस कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है, लॉ कमीशन है, और इस तरीके के और कमीशन भी, जस्टिस चोपड़ा कमीशन था मेहरानगढ़ दुखांतिका के संदर्भ में जो है, तो इस तरीके के कमीशन जो है वो और भी कमेटियां और कमीशन बनते रहते हैं, वो अलग कमीशन है। उस कमीशन का मतलब आयोग से है। यस, हाँ जी। सर जैसे धारा 55 के प्रमुख में था कि जो गिरफ्तार करने वाला अधिकारी है और जो निर्णय है वो धमकी समुदाय के साथ उसे गिरफ्तारी का खर्चा भी दे रहा था, उसे तब छोड़ा जा रहा था। ठीक बात है। तो यहाँ पे अगर कोई किसी का साथ लेने के लिए वो कोई बीमार है, हॉस्पिटल या घर वगैरह में है, वो वहाँ पे जाता है तो उसका खर्चा देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा। जिस पार्टी ने एप्लीकेशन लगाई थी कमीशन जारी करने की उसको पे करना पड़ेगा। ऑर्डर 26 के रूल 15 में एक्सप्रेस प्रोविजन है। आदेश 26 का नियम 15 जो है उसमें प्रावधान दे रखा है, फॉर द इंस्टेंस ऑफ द पार्टी और फॉर हुज बेनिफिट द कमीशन हैज बीन इशूड द कंसर्न पार्टी शैल पे द एक्सपेंसेस ऑफ द कमीशन। जिसकी प्रेरणा पर मीन्स जिसकी एप्लीकेशन पर कमीशन जारी हुआ है या जिसके फायदे के लिए कमीशन जारी हुआ है उस पक्षकार के द्वारा, वो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट जो भी है उसके द्वारा कमीशन के खर्चे दिए जाएंगे। ऐसा ऑर्डर 26 के रूल 15 में एक्सप्रेस प्रोविजन है। कमीशन किन प्रयोजनों के लिए निकाला जा सकता है, जारी किया जा सकता है? 7 पर्पज आपको है वो मिलेंगे धारा 75 में। व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए, स्थानीय अन्वेषण के लिए, लेखाओं की परीक्षा या समायोजन के लिए, संपत्ति के विभाजन के लिए, वैज्ञानिक तकनीकी और विशेषज्ञ अन्वेषण के लिए, विनिश्वर जंगम संपत्ति के विक्रय का संचालन के लिए और अनुसूची कार्य करने के लिए। ये जो 6th पॉइंट है ये वो बैरक में थोड़ा लंबा दे रखा है,
उसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। शीघ्रतया और प्रकृत्या सहशील कोई जंगम संपत्ति जो न्यायालय की अभिरक्षा में है, उसका तुरंत विक्रय का संचालन करने के लिए, तो उस शीघ्रतया और प्रकृत्या सहशील के लिए वीनेश्वर जो है वो सब्सटीट्यूट कर दिया। तो वीनेश्वर को जंगम संपत्ति है और न्यायालय की अभिरक्षा में, उसका तुरंत वो विक्रय का संचालन करने के लिए भी कमीशन जारी हो सकता है और अनुसचिव कार्य करने के लिए भी कमीशन जारी हो सकता है। बहुत बार प्रीलिम्स के पेपर में क्वेश्चन आता है जिसमें कहीं एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री डाल देते हैं, कोई ऐसा पर्पस डाल देते हैं जो 75 में नहीं है। तो आपको ये वाले पर्पस बहुत अच्छे से याद रखने हैं। वहां इज और इज नॉट ऐसा कौन सा है या कौन सा नहीं है, ऐसा विच वन इज करेक्ट, इनकरेक्ट, राइट, रॉन्ग, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। पहले तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद देखना है कि 75 में कौन से दे रखे हैं, जिसमें पूछा है नहीं है उनको अलग कर दो जो 75 से मैच कर रहे हैं, और जो बचेगा वो राइट आंसर हो जाएगा उसका। तो डिग्री के एग्जीक्यूशन को एक तो कंफ्यूज करने के लिए डालते हैं, इसमें वो नहीं है। इसमें डिग्री के एग्जीक्यूशन जो है वो नहीं है, वो रिसीवर का अपॉइंटमेंट ये भी है वो नहीं है। तो इस तरीके के कुछ है वो मिलते जुलते ऑप्शन डाल देते हैं जिससे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ऐसे आपको है वो तैयार रहना है। प्री ओरिएंटेड क्वेश्चन है वैसे, इससे मेंस में भी एक्सेप्शनली 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में 75 से क्वेश्चन आ सकता है। आदेश 26 के कुछ नियमों के साथ हम देखेंगे क्लासिफिकेशन इसका, कि ये जो 7 पर्पज हमने पढ़े, इन 7 प्रयोजन के लिए जारी होने वाले कमीशन में आदेश 26 में कौन से नियम किस पर्पज से रिलेटेड है। पहला पर्पज था व्यक्ति की परीक्षा के लिए कमीशन। आदेश 26 के स्टार्टिंग में नियम 1 से लेकर और 8 तक सारे व्यक्ति की परीक्षा के लिए जारी होने वाले कमीशन से रिलेटेड है। नियम 9 और 10 स्थानीय अन्वेषण के लिए जारी होने वाले कमीशन से रिलेटेड है। 11 और 12 लेखाओं की परीक्षा और समायोजन के लिए जारी होने वाले कमीशन से रिलेटेड है। और 13 और 14 संपत्ति के विभाजन के लिए। ये तो बहुत इजी थे। देन नियम 10 का ये वैज्ञानिक, तकनीकी और विशेषज्ञ जो अन्वेषण है उसके लिए जारी होने वाले कमीशन से रिलेटेड है। यहां थोड़ा सा फर्क आएगा। 10 ग जो है 10C ये पहले है। 10C जो है वो विनिश्वर जंगम संपत्ति के विक्रय के संचालन के लिए, और 10B जो है नियम 10 ख जो है ये अनुसूचित कार्य के लिए जारी होने वाले कमीशन से रिलेटेड है। देन कमीशन से संबंधित साधारण प्रावधान या सामान्य प्रावधान नियम 15 से 18 तक है, और 19 से लेकर और 22 तक वाले विदेशी न्यायालय और विदेशी अधिकरणों की प्रेरणा पर कमीशन जारी है वो किया जाना, ये नियम 19 से लेकर और 22 तक है।